So far we have seen one formula for profit volume ratio, which we all know and which we all agree to. What is the formula that we have seen so far for profit volume ratio? So for profit volume ratio, the formula that we have seen, I believe everybody can answer this question. The formula that we have seen in the last lecture, what was it? It was contribution upon sales multiplied by 100. This is what we have seen so far. One more thing we can agree. Let's all pay attention to this aspect as well. Sales minus variable cost is equal to contribution. Correct? Suppose if somebody tells you that variable cost is equal to 79%. Hypothetically speaking, what are they telling you? Variable cost is equal to how much? 79%. सबसे पहला सवाल उठता है, it is 79% of what? The answer is it is 79% of sales. If somebody says it is 79%, the first question you ask, it is 79% of what? The answer is it is 79% of sale. So obviously sale has to be how much percent? 100. So this will be how much? So obviously contribution is how much? 21. So always remember 1 minus VC is equal to PV ratio. 1 minus 0.79 is equal to 0.21. What is PV ratio? Contribution expressed as a percentage of sale. What is PV ratio? Contribution expressed as a percentage of sale. So contribution when expressed as a percentage of 100 is going to be how much? 21% over here. Right? Now you are going to learn a new formula today for the purposes of this PV ratio business. Am I clear here? Now please pay attention to the question on the screen. Let's check out what they are asking. Take a look at this particular data. From the following particulars, calculate. What are you supposed to calculate? Calculate PV ratio and calculate the fixed cost. The first year sales is given, the first year profit is given. The second year sale is given and the second year profit is given. I know one thing for sure, and that is when it comes to PV ratio, when it comes to what? When it comes to PV ratio is equal to contribution upon sales into 100. For the purposes of calculation of contribution, I require variable cost. Don't I require variable cost? Yes, sir, I require variable cost. Now, the biggest challenge in this question is this contribution I cannot calculate because sales, yes, I have the data. But do I have the data for variable cost? No, I don't have the data for variable cost. But what kind of data do I have in the question? In the question, I have sales of year 1 and I have sales of year 2. I have profit of year 1 and I have profit of year 2. Change in profit upon change in sale is also a formula for PV ratio. What is the formula for PV ratio? Change in profit upon change in sale. We are all taking a look at illustration number 1. Kindly stay focused over there. We are using the CS Institute study material for the purposes of this particular conversation. What is the formula that I said? The new formula that I spoke about over here. The new formula that I spoke about over here is, just a second. The new formula that I spoke about over here is change in profit upon change in sales. What is the new formula? Change in profit upon change in sales. Now, hold on. Suddenly, for PV ratio, what are all the things that I can say? Boss, PV ratio. Statement number 1, contribution upon sales multiplied by 100. Statement number 2, 1 minus variable cost percentage. Statement number 3, change in profit upon change in sale. Upon what? Change in sale. I hope everybody agrees to this statement. Now,
How do we calculate this? I need profit of year one and I need profit of year two. Profit of year one, profit of year two. Let's take a look at profit of year one, profit of year two. The profit of year one is 9,000 and the profit of year two is 15,000. Agreed or disagreed? Okay. So can I say that delta profit means what? Change in profit. What is the meaning of delta profit? Change in profit. Can I say that this is equal to 15,000 minus 9,000, which is equal to how much? 6,000. Next, can I talk about change in sale? Delta sale means what? Change in sale. What is the answer? Sir, it is 2,25,000 minus 1,95,000. Now my calculator is not with me. I need your help. What is this answer going to be? What is this answer going to be? This will be how much? 30,000. Agreed or disagreed? दोस्तों पीवी रेशो क्या है? पीवी रेशो इज चेंज इन प्रॉफिट अपॉन चेंज इन सेल. What is change in profit? 6,000. What is change in profit? 30,000. Calculate 6 divided by 30. What is your answer? 0.2 means nothing but 20%. 0.2 means what? 20%. अभी इस पे एक जबरदस्त इंटरेस्टिंग स्टेटमेंट मुझे पास करना है. एक जबरदस्त इंटरेस्टिंग स्टेटमेंट मुझे पास करना है. अब इस जबरदस्त इंटरेस्टिंग स्टेटमेंट की तरफ सबका ध्यान आएगा. सर, सेल्स माइनस वेरिएबल कॉस्ट is equal to contribution. Agreed or disagreed? Sir, contribution is, if expressed as a percentage of sale, it becomes what? Sir, it becomes PV ratio. Sir, so if contribution is 20%, sales has to be how much percent? So variable cost will be how much percent? Sir, this will stand true in year one also. It will stand true in year two also. Sir, this particular statement stands true in year one also. It stands true in year two also. Sir, if this statement stands true, what you are saying is this. You are saying that variable cost automatically becomes how much percentage? Agreed or disagreed? Variable cost automatically becomes how much percentage? Do you agree or do you disagree to this statement? Sir, keep one thing in mind. The composition of cost has not changed from one year to other year. पहले ईयर में अगर वेरिएबल कॉस्ट 80% है तो अगले साल में भी इट कंटिन्यूज टू बी हाउ मच परसेंट? 80%. इट कंटिन्यूज टू बी हाउ मच? कॉम्पोजिशन ऑफ कॉस्ट चेंज हुआ? कॉम्पोजिशन ऑफ कॉस्ट चेंज हुआ नहीं. सर क्या चेंज हुआ? प्रॉफिट चेंज हुआ. सर प्रॉफिट कैसे चेंज हो सकता है? अरे कॉम्पोजिशन ऑफ कॉस्ट चेंज नहीं हुआ, प्रॉफिट चेंज हो सकता है. कैसे? ज्यादा बेचो ज्यादा प्रॉफिट मिलेगा, कम बेचो कम प्रॉफिट मिलेगा. तुम्हारा वेरिएबल कॉस्ट 80% रहेगा, चलेगा. आज तुम 1 लाख का बेचो, वेरिएबल कॉस्ट 80,000 हो जाएगा. आज तुम 1 करोड़ का बेचो, वेरिएबल कॉस्ट 80 लाख हो गया. समझने की कोशिश करो. जितना तुम्हारा सेल्स बढ़ते जाएगा उतना तुम्हारा प्रॉफिट बढ़ने वाला है. वेरिएबल कॉस्ट जितना परसेंटेज ऑक्यूपाई करता है उतना परसेंटेज ऑक्यूपाई करके बैठा हुआ है. बट जैसा तुम्हारा सेल्स इंक्रीज होते चला जाएगा वैसा तुम्हारा प्रॉफिट भी बढ़ेगा. यस सर, कॉम्पोजिशन, कॉस्ट का कॉम्पोजिशन चेंज हुआ नहीं है. कॉस्ट का कॉम्पोजिशन चेंज हुआ नहीं है. सर यहां पे अब हम ये वर्किंग बनाएंगे ईयर वन ईयर टू. सर हमारे पास है ना एक बहुत इंपॉर्टेंट डेटा क्वेश्चन में इन्होंने दिया है. सर इन्होंने हमें दोनों साल के सेल्स दिए हुए हैं 195 एंड 225. सर इसके बेसिस पर हम इस पूरे क्वेश्चन को अच्छे तरीके से डिसएम्बिग्युएट कर सकते हैं क्योंकि एक अहम डेटा अब हमारे हाथ लग गया है. 195 एंड 225. अब यहां पे देखो, ईयर वन का सेल कितना है? 195. ईयर टू का सेल्स कितना है? 225. सर मैं जानता हूं कि पीवी रेशो कितना है. सर अगर पीवी रेशो 20% है तो वेरिएबल कॉस्ट को 80% होना ही पड़ेगा. करो 195 का 80%. कम ऑन.
1,56,000. Check if she's correct. 1,56,000. Okay, she's saying 156. Everybody agrees with her. What am I left with? I am left with contribution. 195 minus 156, please. What do I get? What do I get? 39,000. Please check if this is 20% of sales. Do 39,000 divided by 1,95,000 percentage on your calculators. 39,000 divided by 195. Come on. How much percentage? 20%. Agreed or disagreed, sir? PV ratio stands true to the statement. सर अब गजब की बात देखो सर, कंट्रीब्यूशन माइनस फिक्स्ड कॉस्ट क्या आता है अपने को सर? कंट्रीब्यूशन माइनस फिक्स्ड कॉस्ट प्रॉफिट आएगा सर। प्रॉफिट ऑफ ईयर वन भी हमारे पास है सर। प्रॉफिट ऑफ ईयर वन कितना था सर? 9,000 था। प्रॉफिट ऑफ ईयर वन कितना था सर? 9,000 था प्रॉफिट ऑफ ईयर वन। यहाँ पे ध्यान दीजिए सर, 9,000 था सर। तो ऑब्वियस सी बात है, फिक्स्ड कॉस्ट बैलेंसिंग फिगर होगा 30,000। यस और नो सर? फिक्स्ड कॉस्ट फिक्स्ड होता है। फिक्स्ड कॉस्ट क्या होता है सर? अगर आपका कैलकुलेशन सही होगा तो अगले साल का प्रॉफिट कितना है? 15,000 सर। ये ऑटोमेटिकली इसमें बैठेगा। अब इसको बैठ के दिखाएंगे। 225 का 80% कैलकुलेट करो। कम ऑन, 1,80,000. चेक वेदर इज करेक्ट. इज करेक्ट. वर्बली आई कैन चेक द आंसर हियर इज 45,000. सर फिक्स कॉस्ट इज फिक्स्ड सर. लेट इट स्टे फिक्स्ड. व्हाट डिड आई गेट सर? सर आई गॉट प्रॉफिट. सर आई गॉट प्रॉफिट. सर ये हमारे इंस्टीट्यूट का क्वेश्चन है, चलेगा ना? अब मैं इसको अपना बना लेता हूं. एक्स्ट्रा क्वेश्चन. एक्स्ट्रा क्वेश्चन. कैलकुलेट ब्रेक इवन सेल्स ऑफ ईयर वन एंड ईयर टू. सर फालतू बात मत करो सर. फालतू बात मत करो. कंफ्यूज मत करो हम लोग को सर. हम लोग को पता है ब्रेक इवन सेल का दो फॉर्मूला होता है. ब्रेक इवन सेल इज इक्वल टू सर फिक्स्ड कॉस्ट अपॉन कंट्रीब्यूशन पर यूनिट सर, और इट इज फिक्स्ड कॉस्ट अपॉन पीवी रेशियो. सर ये तो होने से रहा क्योंकि हमारे पास में पर यूनिट डेटा नॉट अवेलेबल. सर डेटा नॉट अवेलेबल सर, पर हमारे पास ये डेटा अवेलेबल है सर. 30,000 डिवाइडेड बाय 20%. कैलकुलेट प्लीज. व्हाट इज योर आंसर? व्हाट इज योर आंसर? 1,50,000 सर. सीधी सीधी बातें करते ना सर. ईयर वन का फिक्स कॉस्ट कितना रहेगा सर? ये रहा यहाँ पे 30,000 सर. ईयर टू का फिक्स कॉस्ट भी उतना ही है सर. पीवी रेशो दोनों जगह पे वही है सर. तो आप ऐसा नहीं बोल सकते ईयर वन का ब्रेक इवन दो और ईयर टू का ब्रेक इवन दो. आप क्वेश्चन में हमें कंफ्यूज मत करो सर. सीधा सीधा क्वेश्चन है. ब्रेक इवन सेल्स मांगा है सर. ये ब्रेक इवन सेल्स का फॉर्मूला है. आप कौन सा भी फिक्स कॉस्ट लो सर, वही होने वाला है. ईयर वन हो या ईयर टू हो, दोनों का ब्रेक इवन सेल्स कितना आने वाला है सर? 1.5 लाख. क्योंकि क्योंकि कॉस्ट कॉम्पोजिशन चेंज नहीं हुआ. क्योंकि फिक्स कॉस्ट चेंज नहीं हुआ तो ब्रेक इवन वही का वही रहेगा. क्योंकि कॉस्ट कॉम्पोजिशन चेंज नहीं हुआ इसीलिए पीवी रेशो वही का वही है 20% पर. क्योंकि कॉस्ट कॉम्पोजिशन चेंज नहीं हुआ, फिक्स कॉस्ट वही का वही है 30,000 पर. तुम्हारा ब्रेक इवन वही का वही रहने वाला है. सर जबरदस्त बात बोल दी सर. जबरदस्त बात बोल दी. तो हम अभी मार्जिन ऑफ सेफ्टी सेल्स भी कैलकुलेट कर सकते हैं. आपने सिखाया था मार्जिन ऑफ सेफ्टी सर. हाँ सर. मार्जिन ऑफ सेफ्टी सेल इज इक्वल टू प्रॉफिट अपॉन पीवी रेशो. सर पहले साल का प्रॉफिट 9,000 था डिवाइडेड बाय 20%. व्हाट इज द आंसर प्लीज? 45,000 सर. गजब की बात बोल देता हूं ईयर वन के लिए सर. ईयर वन के लिए सर. ईयर वन के लिए टोटल सेल सर. ईयर वन का टोटल सेल जो होगा सर, ये होगा सर ब्रेक इवन सेल प्लस मार्जिन ऑफ सेफ्टी सेल्स. सर ब्रेक इवन सेल्स ईयर वन का 1,50,000 है कि नहीं है आप मुझे बताओ सर. और मार्जिन ऑफ सेफ्टी सेल्स कितना है? 45,000 सर. टोटल सेल्स हो गया 1,95,000. हमारा डेटा सही ही होना चाहिए. ये कोई मिरेकल नहीं है. ये कोई मिरेकल नहीं है. दिस इज एब्सोल्यूट कॉन्सेप्चुअल एप्लीकेशन. I am not performing any miracle over here. Are you understanding what I'm trying to say? Yes or no? Please tell me that. Agreed or disagreed? Agreed or disagreed, my dear students? My dear friends, keep one thing in mind. सर एक जबरदस्त स्टेटमेंट मारता हूं. ये स्टेटमेंट सुन लेना सर. If fixed cost is unchanged and sir PV is unchanged,
सर ब्रेक इवन सेल्स इज ऑल्सो अनचेंज्ड, इज ऑल्सो व्हाट, अनचेंज्ड, बट मॉस का ऐसा नहीं है। सर क्यों? सर क्योंकि मॉस प्रॉफिट की औलाद है। सर पीवी भले अनचेंज्ड रहे, प्रॉफिट सालाना बेसिस पर बदलता रहेगा। तो मॉस सालाना बेसिस पर बदलता रहेगा, बेस वही रहेगा, मॉस चेंज होगा। सर प्रूव करो स्टॉक से, कायदे से। ईयर 2 की बात करें, ईयर 2 के लिए मॉस कैलकुलेट कर रहा हूं मैं, मॉस ऑफ ईयर 2 कैलकुलेट कर रहा हूं। क्या कर रहा हूं मैं? मॉस ऑफ ईयर 2 कैलकुलेट कर रहा हूं। मॉस ऑफ ईयर 2 इज व्हाट सर? इट इज प्रॉफिट अपॉन पीवी। सर दूसरे साल का प्रॉफिट था 15,000, पीवी है 20%। सर इसका आंसर कितना है? कितना है इसका आंसर? सर 75,000 आया। कितना है इसका आंसर? सर 75,000 आया। सर ईयर 2 का टोटल सेल्स अगर कैलकुलेट करें तो ये बनेगा बेस्ट प्लस मॉस। सर बेस्ट तो वही का वही रहेगा, 1.5 लाख हमने कैलकुलेट किया था, ये रहा 1.5 लाख सर्कल किया। सर अभी इसमें मॉस जोड़ लो। सर अब देखो टोटल सेल 225 है कि नहीं? ईयर 2 का होना ही पड़ेगा, होना ही पड़ेगा। तो मेरे को टीचिंग छोड़ना पड़ेगा। कितना है? 225। आर यू अंडरस्टैंडिंग व्हाट आई एम ट्राइंग टू से? यस और नो? सर भले इंस्टीट्यूट ने कुछ भी पूछा हो, हमारे में इतना कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी है कि हम चेंज इन प्रॉफिट अपॉन चेंज इन सेल के बेसिस पे किस पे अराइव करेंगे? सर पीवी रेशो पर अराइव करने के बाद हम इसमें से सर फिक्स्ड कॉस्ट ढूंढ सकेंगे। सर एक बार फिक्स्ड कॉस्ट ढूंढ लिया तो सर हम बेस्ट ढूंढ पाएंगे। सर बेस्ट के बाद हम मॉस ढूंढ पाएंगे। सर क्योंकि बेस्ट के लिए हमें चाहिए फिक्स कॉस्ट अपॉन पीवी रेशो, और मॉस के लिए हमें चाहिए प्रॉफिट अपॉन पीवी रेशो। क्या ये दो हम इसमें से ढूंढ पाएंगे? सर पाएंगे नहीं, हम पा चुके, खलास हो गया। आर यू अंडरस्टैंडिंग व्हाट आई एम ट्राइंग टू से? यस और नो? प्लीज टेल मी दैट। सो आपका जो इलस्ट्रेशन 1 ऑफ सीएस इंस्टीट्यूट है, उसमें भले पूछा होगा सिर्फ कैलकुलेशन ऑफ पीवी रेशो एंड फिक्स्ड कॉस्ट। देखिए मैं मानता हूं उसमें पूछा सिर्फ क्या है, कैलकुलेशन ऑफ पीवी रेशियो एंड फिक्स कॉस्ट ही पूछा है आपसे। लेकिन हम लोग ने सी में क्या किया? सर हम लोग ने बेस किया, और डी हम लोग ने क्या किया? सर मॉस किया। किया कि नहीं? तो सर इसमें हम लोग ने 2 एक्स्ट्रा क्वेश्चन निकाल के इसको सॉल्व कर लिया है। अभी हम लोग शांति से इसको क्या करेंगे? कॉपी करेंगे। क्या करेंगे? कॉपी करेंगे। आराम से कॉपी करो। नाउ लेट्स टेक अ लुक एट दिस क्वेश्चन। This question is called a reverse working question. Sir, what is the meaning of a reverse working question? Don't bother. What it's called, don't bother. Now get into the question itself. The national company has just been formed. Okay. They have a patented process that will make them the sole suppliers of a particular product A. Okay. During the first year, their capacity of the plant will be 9,000 units. Important data. And this is the amount that they'll be able to sell. So their sales are 9,000 units. I am interested in understanding that particular aspect. So what is this? These are units sold. Any doubts? Yes or no? Please tell me that. What is this 9,000? 9,000 is what? Units sold. Any doubts? Any problems? Any questions? Any issues? No issues. Let's go ahead. And this is the amount that they'll be able to sell. Their costs are, सर डायरेक्ट लेबर कॉस्ट है। सर क्या है? सर डायरेक्ट लेबर कॉस्ट है। डायरेक्ट लेबर कॉस्ट कितना है? सर 15 पर यूनिट। सर ये वेरिएबल कॉस्ट है। सर ये कौन सा कॉस्ट है? सर ये वेरिएबल कॉस्ट है। चलो ठीक है, ये कौन सी कॉस्ट है? सर ये वेरिएबल कॉस्ट है। सर रॉ मटेरियल्स 5 पर यूनिट। व्हाट इज रॉ मटेरियल्स? 5 पर यूनिट। सर ये भी वेरिएबल कॉस्ट है। सर अदर वेरिएबल कॉस्ट, सीधा सीधा बोलते वर्ड यूज करते वेरिएबल कॉस्ट। चलो ठीक है। सर फिक्स्ड कॉस्ट भी दिया हुआ है। देयर आर टू पार्ट्स टू दिस क्वेश्चन। द कंपनी एम्स टू मेक अ प्रॉफिट ऑफ 2,10,000। कंपनी एम्स टू मेक अ प्रॉफिट ऑफ हाउ मच? 2,10,000। सर एक बहुत ही सिंपल सा एक लॉजिक है। सर आप इस लॉजिक को एग्री करते हैं क्या? आप हमें बताइए। सर हमारा लॉजिक ये है। सर एक होता है सेल्स, सर इसमें से निकलता है वेरिएबल कॉस्ट। आपको कोई डाउट है इसमें? सर कोई डाउट नहीं है, ये करके हमारे हाथ में कंट्रीब्यूशन आ जाएगा। कोई प्रॉब्लम है इसमें? नहीं। सर कंट्रीब्यूशन में से ना सर फिक्स्ड कॉस्ट निकलता है, और हमारे हाथ में क्या आ जाता है ना सर? प्रॉफिट आ जाता है, और हमारा स्टोरी यहाँ पे खत्म हो जाता है। सर उल्टा सोचो। उल्टा मतलब नीचे से ऊपर।
सर अगर मैं प्रॉफिट को फिक्स्ड कॉस्ट से ऐड कर दूं तो मेरे पास क्या आ जाएगा? सर कंट्रीब्यूशन आ जाएगा। सर और अगर मैं कंट्रीब्यूशन को वेरिएबल कॉस्ट से ऐड कर दूं तो सर मेरे पास सेल आ जाएगा। सर और यही एग्जैक्ट चीज मेरे पास में इस क्वेश्चन में दी गई है। सर ये क्वेश्चन मुझसे कहता है कि सर सेल्स कितने हैं नहीं पता, सर पर यूनिट को वही रखेंगे और टोटल 9,000 यूनिट्स का मैं यहां पे लिख देता हूं। पता नहीं सर सेल्स, पता नहीं। सर सेल्स में से ना वेरिएबल कॉस्ट कटेंगे। क्या कटेंगे? सर पहला वेरिएबल कॉस्ट इस क्वेश्चन में कटेगा 15 पर यूनिट, फिर 5 पर यूनिट और 10 पर यूनिट। सर चलो काटते हैं। सर पहला वेरिएबल कॉस्ट है डायरेक्ट लेबर, वो कितना कटा सर? 15 पर यूनिट। सर 9,000 यूनिट के लिए ये फिक्स कॉस्ट 1,35,000 होगा कि नहीं होगा? सर इसके बाद में मुझे बोल रहे हैं ये लोग रॉ मटेरियल। बोलो भाई रॉ मटेरियल कितना है क्वेश्चन में, देख के बोलो हाउ मच इज रॉ मटेरियल पर यूनिट? हाउ मच इट इज सर? 5 पर यूनिट। सर तो 9,000 यूनिट के पीछे ये 45,000 होगा कि नहीं होगा? सर अदर वेरिएबल कॉस्ट कितना बोल रही है क्वेश्चन के अंदर? सर 10। सर 9,000 यूनिट के लिए 90,000 यूनिट होगा कि नहीं होगा? सर होगा, जरूर होगा। सर टोटल वेरिएबल कॉस्ट आप हमको बताइए। सर इधर दिख रहा है मुझे 2,70,000 हो गया सर। सर 90 प्लस 45 135 प्लस 135 270 हो गया सर। हो गया पक्का? सर अगर हम इसको सब्ट्रैक्ट करेंगे सेल के अंदर से तो सर हमारे हाथ में क्या आ जाएगा? सर कंट्रीब्यूशन कितना है सर? पता नहीं सर, पर कंट्रीब्यूशन में से हम लोग क्या सब्ट्रैक्ट करेंगे? सर और फिक्स्ड कॉस्ट क्या है ना इस क्वेश्चन में दिए हुए हैं। सर कितने हैं इस क्वेश्चन के फिक्स्ड कॉस्ट? दिख रहा है यहाँ पे 2,40,000 दिख रहा है यहाँ पे 2,40,000। सर फिक्स्ड कॉस्ट यहाँ पे दिख रहा है 2,40,000। सर प्रॉफिट कितना दिया है? प्रॉफिट क्वेश्चन में दिया है। सर क्वेश्चन में दिया है, हमें चाहिए प्रॉफिट 2,10,000 का। हमें चाहिए प्रॉफिट। सर अगर 2,10,000 का प्रॉफिट चाहिए तो आपको कंट्रीब्यूशन कितना लगेगा? सर आपको कंट्रीब्यूशन 4.5 लाख का लगेगा। यस और नो प्लीज टेल मी। सर सेल्स माइनस वेरिएबल कॉस्ट इज इक्वल टू कंट्रीब्यूशन। सर देयरफॉर सेल्स इज इक्वल टू कंट्रीब्यूशन प्लस वेरिएबल कॉस्ट। यस और नो? यस सर। सर कंट्रीब्यूशन कितना है हमारा? सर 450। एंड व्हाट इज वेरिएबल कॉस्ट? सर 270। सर ये हुआ कि नहीं? 7,20,000। करो कैलकुलेशन, हुआ कि नहीं 720? यस और नो? सर 7,20,000 टोटल 9,000 यूनिट का है। सर तो एक यूनिट के पीछे हम लोग ने कितने में बेचा? सर ऑब्वियसली 80 में बेचा। कितने में बेचा? 80 में बेचा। सर 80 कैसे आया? सर ऑब्वियसली ऐसे आया ना, 7,20,000 डिवाइडेड बाय हाउ मच? 9,000। बराबर है। सर हमारा टोटल वेरिएबल कॉस्ट 15 और 5 20 और 10 कितना? सर 30। सर सेल्स माइनस वेरिएबल कॉस्ट इज इक्वल टू कंट्रीब्यूशन इज 50 पर यूनिट। सर 50 पर यूनिट को किससे मल्टीप्लाई करो? सर 9,000 से मल्टीप्लाई करो। आपके हाथ में कितना आएगा? सर 4.5 लाख रुपया आएगा। देयरफॉर sales needed for profit of how much? For profit of 2,10,000 is equal to 7,20,000. Therefore, selling price per unit is equal to rupees 80. Variable cost per unit is equal to rupees 30. Contribution per unit is automatically equal to rupees 50. नाउ प्लीज कीप वन थिंग इन माइंड। सर आपने ना पिछले बार ये जबरदस्त चीज बोली थी। सर डिजायर्ड लेवल ऑफ प्रॉफिट, ये आपने लास्ट टाइम हमें सिखाया था। डिजायर्ड लेवल ऑफ प्रॉफिट होता है सर फिक्स्ड कॉस्ट प्लस सर डिजायर्ड प्रॉफिट सर डिवाइडेड बाय ईदर द पीवी रेशो सर और सर फिक्स्ड कॉस्ट प्लस डिजायर्ड प्रॉफिट अपॉन कंट्रीब्यूशन पर यूनिट। सर हमारे पास फिक्स्ड कॉस्ट था। सर हमारे पास फिक्स कॉस्ट क्वेश्चन में था 2,40,000। सर हमारे पास डिजायर्ड प्रॉफिट क्वेश्चन में गिवन था 2,10,000। सर पर हमारे पास वेरिएबल कॉस्ट कैलकुलेट करने जितना डेटा नहीं था। सर पीवी रेशो कैलकुलेट करने के लिए हमें सेल्स माइनस वेरिएबल कॉस्ट चाहिए होता है विच इज इक्वल टू कंट्रीब्यूशन। फिर कंट्रीब्यूशन अपॉन सेल्स इंटू 100 अपन करते तब क्या मिलता है?
पीवी रेशो। और सर इस क्वेश्चन में सिर्फ हमें वेरिएबल कॉस्ट का ही डेटा दिया गया था। सर वेरिएबल कॉस्ट कितना था हमारा, 15, 5, 20 और 10, 30। सर मेरे पास तो सिर्फ यही डेटा था 30 पर यूनिट का, मेरे पास इसके अलावा और कोई भी डेटा नहीं था। सर इसके बावजूद भी जब मैं ओनली कंट्रीब्यूशन पे आ गया तब तक सर मैं रिवर्स वर्किंग में जा चुका था। सर एक जबरदस्त बात बोलता हूं, एक जबरदस्त बात बोलता हूं। सर डिजायर्ड लेवल ऑफ प्रॉफिट का फॉर्मूला हम यहां पर अप्लाई नहीं कर सके। हम यहां पर अप्लाई क्या कर सके सर, नहीं कर सके। आर वी श्योर अबाउट दिस स्टेटमेंट? यस सर। क्यों नहीं कर सके सर? क्योंकि सेल्स डेटा नॉट अवेलेबल। सर वेयर यू कैन नॉट अप्लाई डीएलपी फॉर्मूला, जहां पर ये अप्लाई नहीं कर सकते, जहां पर ये नहीं अप्लाई कर सकते, सर ऐसे टाइम पर हम क्या करेंगे? सर ऐसे टाइम पर हम रिवर्स वर्किंग करेंगे। क्या करेंगे सर? हम रिवर्स वर्किंग करेंगे। सर रिवर्स वर्किंग मतलब क्या? सर रिवर्स वर्किंग का मतलब एक बार फिर से सुन लीजिए सर, सेल्स माइनस वेरिएबल कॉस्ट इज इक्वल टू कंट्रीब्यूशन। सर कंट्रीब्यूशन माइनस फिक्स कॉस्ट इज इक्वल टू प्रॉफिट। सर ये सीधी वर्किंग हो गई। सर ये कौन सी वर्किंग हो गई? सर सीधी वर्किंग हो गई। सर हम बोलेंगे प्रॉफिट प्लस फिक्स्ड कॉस्ट इज इक्वल टू कंट्रीब्यूशन, कंट्रीब्यूशन प्लस वेरिएबल कॉस्ट इज इक्वल टू सेल। सर ये बन गई रिवर्स वर्किंग। सर ये क्या बन गई? सर ये बन गई रिवर्स वर्किंग। ये कौन सा फॉर्मेट है सर? ये हमारे रिवर्स वर्किंग का फॉर्मेट आ चुका है। सर अब इस रिवर्स वर्किंग में देखिए, हमें प्रॉफिट चाहिए थी 2,10,000 की, हमारी फिक्स कॉस्ट थी 240 की। अग्रीड और डिसअग्रीड? सर तो ये 450 का कंट्रीब्यूशन बन गया। सर नोटिस करना, वेरिएबल कॉस्ट था 30 पर यूनिट फॉर हाउ मेनी यूनिट्स? सर फॉर 9,000 यूनिट्स। सर ये बन गया 2,70,000। सर हमारे पास यहाँ पर 7,20,000 सेल बन गया फॉर हाउ मेनी यूनिट्स? फॉर 9,000 यूनिट्स। पर यूनिट कितना बन गया? 80। सर ये इतना इजी है तो सर आपने ये इतना पूरा महाभारत क्यों एक्सप्लेन किया? ताकि आपके ब्रेन्स में बैठे कि रिवर्स वर्किंग करते कैसा है, और एक बार समझ गया रिवर्स वर्किंग कैसा करते हैं तो ये इतना हलवा है। जिनके मुझे 10 सेकेंड्स लगे ये फॉर्मूला रेप्लिकेट करने में, लेकिन इसका उल्टा लॉजिक समझने में मुझे 5 से लेके 10 मिनट लग गए। आर यू अंडरस्टैंडिंग व्हाट आई एम ट्राइंग टू से? तो आप वर्किंग दोनों कॉपी करेंगे, लेकिन एग्जाम में क्या करके आएंगे ये आपके एग्जाम का है। ये आपके एग्जाम का है 10 सेकेंड सर। पर फिर वो ऊपर आपने क्या लिखा है? तो ऊपर हर एक चीज का हमने एक्सप्लेनेशन यहाँ पे लिखा है कि कंट्रीब्यूशन कैसे आया, यहाँ पे सेल्स कैसे आया, हमने टोटल कैसे कैलकुलेट किया, ये सारी चीजें यहाँ पे लिखी है। यहाँ पे हर एक का ब्रेकअप दिया ना हम लोग ने 270 करने के लिए। पर यहाँ पे एक्चुअल वर्किंग में क्या कर दिया हम लोग ने? सीधा 270 ले लिया, 30 पर यूनिट इंटू 9,000, जो भी हो। A detailed working is available for you. A detailed working is available for you. And of course, the short working is also there. Are you understanding what I'm trying to say? तो ये आपका मेरा ख्याल इलस्ट्रेशन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 2 का पार्ट 1 हो गया। क्या हो गया? ये पार्ट 1 हो गया। यू आर फ्री टू कॉपी।